Okay, welcome back once again to all my dear students. Myself Hitesh Patel from Lux School of Science, and today we are going to start a new chapter. The name of the chapter, that is the redox reaction, right? See, in this chapter, first of all, which are the different points we are going to discuss in this chapter? So first one, chapter number, we can say 9, that is a redox reaction. Redox reaction. See here, okay, chapter number 9, redox reaction. Here the different points we are going to discuss in this chapter. First of all, today we are going to discuss about the introduction. Today let us start about the introduction, then oxidation and reduction reaction, and then after oxidation and reduction, electron transfer method. Oxidation and reduction due to electron transfer method. Electron transfer method, right? So these 3 points we are going to discuss today. So let us start first of all, that is electron transfer method. First of all, start about the introduction. What is a redox reaction? We can say that where there is a oxidation, there is always reduction. So there is a, we can say first point that you have to know about the introduction. ये आपको मालूम होना चाहिए इंट्रोडक्शन का। पहला पॉइंट है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उसमें रिडक्शन होता ही है। सो इन द केमिकल रिएक्शन वेयर देयर इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन where there is oxidation reaction, where there is an oxidation reaction, there is always reduction reaction. There is always reduction reaction. यहां पे देखो ये क्या लिखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि देखो ये मेटल है, उसको रस्टिंग होता है उसकी सरफेस पे, तो वो रस्टिंग क्या है, तो उसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन है वहां पे रिडक्शन होना ही चाहिए, और जहां पे रिडक्शन है वहां पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे कहां पे हम रेडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं, तो व्हेन वी यूज द रेडॉक्स रिएक्शन, सो रेडॉक्स रिएक्शंस आर referred to physical and biological phenomena. So see, the use of this reaction is found in the field like use of the redox reaction is found in the field like pharmaceutical, let us see, pharmaceutical science, then biology, then industrial metallurgy. Say write down pharmaceutical science, then biology, then industrial metallurgy, right? Industrial metallurgy. In all this field we have to use the redox reaction, and in the agriculture also, and in agriculture, etc. See, all these are the different fields.
where the redox reaction will be occur. As for example, see, whenever you want to prepare any chemical fertilizer, then also there is some redox reaction, right? So whenever you want to convert the one form of energy into another form, then there is also a redox reaction. As for example, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बैटरी में chemical energy is converted into electrical energy. So to convert what chemical energy into what electrical energy or vice versa, right? अगर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन. एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेल है, पेंसिल सेल आपने देखा होगा, राइट, जो घड़ियाल में यूज करते हैं, राइट. तो उस सेल में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है, पर हमको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई, वो केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. क्योंकि उस रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. पता चल गया कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. अंडरस्टैंड? So these things you have to know. It is also used in the household purpose for the different field commercial purpose, right? So also used in, it is also used in different commercial purpose, right? कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट, रेडॉक्स रिएक्शन को. या ओके, जस्ट लाइक इन द प्रिपरेशन ऑफ caustic soda, like in preparation of what? caustic soda. ओके. सो इसको हम प्रिपेयर करना है, तो उसमें भी क्या हो सकता है? रेडॉक्स रिएक्शन. एंड नाउअडेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन रिसेंट टाइम हाइड्रोजन एज एन इकोनॉमी एनर्जी सोर्स एंड आल्सो द होल्स इन द ओजोन लेयर आर नोटेबल रेडॉक्स रिएक्शन. होल्स इन द ओजोन लेयर आर आल्सो द नोटेबल. ओजोन लेयर है ना, तो आर नोटेबल रेडॉक्स रिएक्शन. उसके क्या बोलते हैं? हमको मालूम है कि ओजोन में क्या है, कि होल्स. तो क्यों होल? क्योंकि यहाँ वहां पे भी क्या हो? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट. सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन. व्हेन वी यूज द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट, बेसिकली वी कैन आल्सो से दैट इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी, right, for the preparation of different drugs. It is also using the household for different commercial purpose also, right. Then after we can say that it is also used for the agriculture, right. In the agriculture also there is a redox reaction. If you want to convert the one form of energy into the another form, that is also redox reaction. मैंने आपको बोला कि अगर बैटरी में क्या होता है कि redox reaction, chemical energy is converted into electrical energy. But the most important point that you have to remember that here when there is oxidation, there is always reduction. Understand? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, उसमें रिडक्शन होना ही चाहिए, तभी हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, राइट. सो नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नोट डाउन फर्स्ट. Chalo. Now let us start
व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहला ही पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? Oxidation, as the name implies, oxidation, that means what? Addition of oxygen and removal of hydrogen, right? So I can write down in a reaction, addition of hydrogen, sorry, oxygen, or removal of hydrogen is called, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ या तो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट। वन केमिकल रिएक्शन इज देयर। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीथेन है। मीथेन का कंबशन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट? तो क्या मिलेगा हमको? CO2 है, H2O, इट विल गिव CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। अंडरस्टैंड? ओके, ये देखो कि यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां से यहां देखो, ये क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 2। यहाँ पे कितने आ गए? 1। और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड and the hydrogen will be added, so we can say it is a reaction. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। अंडरस्टैंड? Let us suppose if I take the another example, just like your H2S gas is there, and if it is a react with the oxygen, then it will give what? So sulfur plus H2O, S plus H2O liquid. Understand? Right? Now if you want to balance this, then oxygen is twice, so I have to multiply it by 2. So here also 2, so here also 2. This is the balancing the chemical reaction. Okay? So now, for balance the chemical reaction, then let us see that which one is oxidation and which one is reduction. See here when I put over here, so sulfur के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट वी कैन से इट इज ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। और यहां से यहां जाएंगे तो ये क्या हुआ? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पे 1, राइट? तो ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। अंडरस्टैंड? तो एक बात क्लियर कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड? उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? नोट डाउन। यहां पे रिडक्शन भी लिख दो। रिडक्शन बोले तो क्या? रिडक्शन मींस, यस, व्हाट इज रिडक्शन? इन द रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन अ reaction, addition of hydrogen or removal of what? Oxygen is called, उसको क्या बोलते हैं? तो रिडक्शन। एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, राइट? देख लो और लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं। चलो और एग्जांपल लिखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं कि यहां पे H2 गैस है प्लस O2 गैस, राइट?
तो क्या मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस H2O लिक्विड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बैलेंस करना है तो ये बैलेंस हो गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, पर कैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है? तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो यहां से यहां लिखूंगा मैं क्या, तो इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन। दिस वी कैन से इट इज अ ऑक्सीडेशन, राइट। और यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो, अब क्या हुआ? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज एडेड, सो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी द रिडक्शन। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द फर्स्ट वन। सेकंड, let us suppose H2 plus Cl2, H2 gas plus Cl2 gas, it will give twice HCl liquid, right? यहाँ पे अगर H2 है तो यहाँ पे H ही है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो when hydrogen will be removed, then also we can say it is a oxidation। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। so this we can say oxidation। ये आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक ही है, राइट। ये तो कोएफिशिएंट है, बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ, राइट। और Cl2 यहाँ पे क्या हुआ? कौन ऐड हुआ? क्लोरीन ही था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, सो वी कैन से इट इज अ रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। थर्ड वन, लेट अस सपोज नेक्स्ट वन, यहाँ पे एल्यूमिनियम when it is react with the Cr2O3, right? क्या आएगा यहाँ पे? Al2O3 and plus chromium 2 moles Cr sorry। तो यहाँ पे कितने मोल आएंगे? तो यहाँ पे 2 मोल। अब देखो बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। ये एल्यूमिनियम से यहां में जाओ तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे लिख लो ऑक्सीडेशन। और यहां से अगर यहां जाओ तो अब देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो रिडक्शन। अंडरस्टैंड? सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो। ओके, सो हाउ द ऑक्सीडेशन विल बी टेक प्लेस। Another example, let us take another example, number 4. See here, if I take aluminium and when it is react with the Fe2O3 or Fe3O4, right? Fe3O4 लिखते हैं, चलो Fe3O4 क्या आएगा? Al2O3 plus Fe, Al2O3 plus Fe। पहले तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4O है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, so 3 3s are यहाँ पे 9, understand, and 4 2s are 8। is it clear? so this is how you have to balance the first of all chemical reaction। हमने सीखा है, राइट? फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ाया था तब हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ क्या हुआ? चलो oxygen will be added, so we can see it is a what? Oxidation, right? और यहां से यहां देखो क्या हुआ? तो oxygen will be removed, so we can say it is a reduction। Understand? so all these things you have to know that when the oxygen will be added, then we can say it is a oxidation, and when the hydrogen will be added, then we can say it is a reduction। Understand? Now next one, that is a oxidizing agent and reducing agent। what is oxidizing agent? let us see that oxidizing agent किसको बोलते हैं? the substance which lose oxygen or gain hydrogen। oxidizing agent किसको बोलते हैं? the substance which lose ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर लूज करते हैं, और गेन हाइड्रोजन, और गेन हाइड्रोजन इज फॉर व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड नेक्स्ट वन दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस नहीं, रिएक्टेंट बोलेंगे हम। द रिएक्टेंट which gain oxygen or lose hydrogen is called what? Reducing agent। क्या बोलते हैं हम? reducing agent। चलो यहां पे देखो, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमको मालूम होना चाहिए। चलो यहां पे ये क्या हुआ, शॉर्टकट में मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन किसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन हुआ है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? चलो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ ये हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम। सो वी कैन से that H2 and aluminum are reducing agent। मैं फिर से बोलता हूं कि जिस रिएक्टेंट का, नॉट प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2, Cl2, this and this। So I can write down O2, then Cl2, then Cr2O3 and Fe3O4 are what? Oxidizing agent। Understand? Is it clear? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So these things you have to know that which one is oxidizing agent and which one is reducing agent। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन हम कहां पे यूज करते हैं, ये हमने बात किया इंट्रोडक्शन के लिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या, तो कहां पे, तो फार्मास्यूटिकल में, हाउस होल्ड पर्पस, टू कन्वर्ट द डिफरेंट एनर्जीज, राइट, इन एग्रीकल्चर, राइट, इन बायोलॉजी, इन इंडस्ट्रियल मेटलर्जी। मेटलर्जी किसको बोलते हैं? तो फॉर द सेपरेशन ऑफ दैट डिफरेंट मेटल्स, राइट, सो दैट वी कैन से इट इज अ मेटलर्जी। तो वहां पे हम यूज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सेल में भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, राइट। देन ओजोन लेयर, डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल बी देयर, दैट इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और हमने ऐसा भी बोला कि जहां पे ऑक्सीडेशन है वहां पे रिडक्शन होना ही चाहिए, और जहां पे रिडक्शन है वहां पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दैट chemical reaction in which the oxygen is added or hydrogen will be removed, that we can say is a oxidation। and reduction means hydrogen is added or oxygen will be removed। हमने एग्जांपल दे दिए, right। and then after we have also discussed about the oxidizing agent and reducing agent, means the reactant in which undergoes the oxidation, that is called the reducing agent, and the reactant which undergoes the reduction, that is called the oxidizing agent, right। जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, राइट। सो अप टू हियर इट इज इनफ। इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss the next point, that is the how if there is a no oxygen and hydrogen, then also there is a redox reaction will be there। so how you can say that this is the oxidation and this is the reduction, that we are going to discuss in the next lecture। okay, so thank you very much।